اور میری دعا ہے خدا ہم محض سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں. سو میری کمزوری میں تیرا زور ظاہر ہو, مجھے انوائنٹ کر خدا تاکہ تیرے روح القدس کی رہنمائی و مسا میں میں تیرے لوگوں تک تیرے کلام کی اور منہ کی باتیں پہنچا سکوں, اور ہم گھٹے اور تو بڑھے اور تیرا جلال ظاہر ہو مسیح یسوع کے نام سے. آمین. تشریف رکھیے گا. پلیز گیو اے بگ ہینڈ ٹو گاڈ. گلوری ٹو بی گاڈ. تھینک یو ویری مچ. پریز دی لارڈ. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. اگر آج کوئی فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ورشپ میں ہے تو کیا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ویلکم کریں جو فرسٹ ٹائم آیا ہے. تھینک یو پاسٹر شائق. بہن جی تھینک یو ویری مچ. کوئی اور؟ گاڈ بلیس یو. تشریف رکھیے گا. تھینک یو فار یور کمنگ. میں جب دعا کر رہا تھا اس سال کے لیے کہ خدا میں کس طرح تیری کلیسیا کو سرو کروں, اور جو خاص خدا نے میرے دل پر بات رکھی ہے اس سال کے لیے جو ہمارا مین فوکس ہوگا یا موٹیو ہوگا یا گول ہوگا وہ ہے ٹو نو ہم اینڈ ٹو گرو ان ہم. ہمیں اسے جاننا ہے اور اس میں بڑھنا ہے. سو اس سال ایز اے چرچ ہمارا گول کیا ہے جی؟ اس کو جاننا اور اس میں بڑھنا. سو اگر میں اور آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بغیر اس کو جانے میں اور آپ گرو نہیں ہو سکتے. سو میری یہ ڈیزائر ہے کہ اس سال میں اور آپ مل کر خدا میں گرو ہو. لیکن خدا کاش میرے اور آپ کے اندر یہ ڈیزائر پیدا کرے کہ میں اور آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں. سو اس سال میری دعا ہے مسیح کے بدن کے لیے, مسیح کی کلیسیا کے لیے, کہ ہمیں مسیح میں کیا اسے کیا کرنا, اس کو جاننا ہے اور دوسرا اس میں بالغ ہونا ہے. سو لاسٹ سنڈے ہم نے سیکھا تھا کہ 5 چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی ترقی میں یا نجات کے بڑھنے میں رکاوٹ ہے. اگر اس سال میں اور آپ مسیح میں بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان 5 چیزوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا. اگر میں اور آپ 5 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو سنیے گا, we can miss the kingdom of God. میں اور آپ خدا کے منصوبوں کو, خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں یا رکاوٹ ہو سکتے ہیں. سو جب میں آج کے لیے دعا کر رہا تھا کہ لارڈ ہیلپ می, آج کا جو میسج ہے تھوڑا سا میں نے کوشش کیا کہ میں بڑا سمپل آپ کو ٹیچ اور پریچ کر سکوں. Are you ready for that? نمبر 1, اگر میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا دس از ویری کامن کہ آپ سب خوش ہیں, اٹ از ناٹ ٹرو, کیونکہ ہمیشہ سب لوگ خوش نہیں ہوتے. لیکن پالوس نے کہا میں تم سے کہتا ہوں خوش. سو دس از یور چوائس, یہ آپ کا چناؤ ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, لیکن جب مسیح مجھ میں ہوگا اور ہم مسیح میں ہوں گے ہم ہمیشہ خوش ہوں گے. That's simple. So میں آپ سے یہ پوچھوں گا, do you have desire کہ آپ کے اندر مسیح کو جاننے کی خواہش ہے, کہ آپ کو مسیح میں بڑھنے کی خواہش ہے؟ اگر خواہش ہے تو لکھا خدا میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور میں صبح آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں اور آپ مسیح میں ہیں اور مسیح ہم میں ہے تو میری اور آپ کی جسمانی خواہشیں نہیں ہوں گی بلکہ ہماری روحانی خواہشیں ہوں گی. سو آج صبح میرے سے نکالیے گا فلپیوں کا خط, اس کا 2 باب, فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت. فلپیوں 2 باب, بلکہ میں چاہوں گا پہلے ایسے دیکھ لیں, لیکن میرا آج جو ہمارا فوکس ہوگا وہ 5ویں آیت ہوگی. فلپیوں 2 باب اس کی پہلی 5 آیت کو دیکھیں گے. کتنے لوگ ہیں جو آج اپنی بائبل لے کر آئے ہیں؟ مجھے یاد ہے. اچھا, جن کے پاس نہیں ہے ہم آپ کے لیے فنڈ ریزنگ کریں تاکہ آپ اپنی اپنی کیا لے کر آ سکیں. اچھا, جب موبائل گھر میں رہ جاتا ہے تو ہم 5 میل بھی کیا کرتے ہیں, واپس موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں. اوکے, سو پلیز برنگ یور بائبل. میں نے کل رات بھی آپ کو میسج کیا تھا, برنگ یور بائبل, برنگ یور ڈائری. آپ کہیں گے جی کیوں؟ اور جب میں رات دعا کر رکھا خدا سے کچھ باتیں کر رکھا, خدا کا
चर्च को ये बता गए इस साल 2 काम करने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप चर्च क्यों आते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे मालूम है बहुत सारे जवाब देंगे, किस हैं हम वर्शिप के लिए आते हैं जी, हम कलाम सुनने के लिए आते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन हकीकत में चर्च आने का पर्पस पता क्या? नंबर 1, बहुत सारी बातों में मैं 2 बातें हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1 कि मैं और आप मसीह की बादशाही के लिए तैयार हूं, मैं और आप। नंबर 2, ना सिर्फ बादशाही के लिए तैयार हो बल्कि मसीह को सर्व करने के लिए भी तैयार हो, मसीह की खिदमत के लिए। अगर मैं और आप चर्च आ गए हैं और खुदा का मेन पर्पस मुझे और आपको इक्विप करना है, तैयार करना है अपनी बादशाही के लिए और अपनी जब भी चर्च में आए किस माइंड सेटिंग के साथ आए कि मुझे अपने आप को बादशाही के लिए भी तैयार करना है और अपने आप को खिदमत के लिए भी। That's all about. So निकालिएगा जी फिलिपियों 2 बाब, उसकी पहली आयत में सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की गिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और वाह। जरा नोट कर लीजिएगा कितनी बातें पौलुस कह रहा है। ओके, और किन को कह रहा है? गुनाहगारों को नहीं। पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को यह खत लिखा है जो ईमानदार हैं। दूसरी आयत में लिखा है तो मेरी ये खुशी। वाह। कितनी दफा हम लोगों से तवक्को करते हैं कि वो हमारी खुशी पूरी करे। क्या एक पास्टर भी तवक्को कर सकते कि कलीसिया उसकी खुशी पूरी करे? पास्टर हम सोचते हैं कि पास्टर हमारी हर खुशी को क्या करे या हमारी हर खुशी में क्या हो। So look at that. पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया के ईमानदारों को क्या कह रहा है कि तुम्हें मेरी खुशी को। अच्छा, पौलुस की अब खुशी क्या थी? हाँ? क्या पौलुस की खुशी पैसा थी? Give me cards, give me हदिया, give me offering, give me an annual Thanksgiving. हाँ? So पौलुस की खुशी क्या थी? Look at that. Number 1 क्या कहो? वाह। यकसा मोहब्बत रखो, एक ही तफरके और कुछ ना करो बल्कि फरोख्ती से एक दूसरे को अपने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने से। अच्छा, ये इजी काम है कि मुश्किल काम है? क्यों मुश्किल है? Why? अगर ये मुश्किल था तो पौलुस कलीसिया को क्यों लिख रहा है? क्यों वो ये तवक्को कर रहा है? मुश्किल है या नामुमकिन है? मुश्किल क्यों है? Think about that. Why? How is difficult? Why? फिर आगे क्या लिखा है? हर एक अपने ही बल्कि 5वीं आयत वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु। आज सुबह का जो टॉपिक है वो है द माइंड ऑफ क्राइस्ट। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मिजाज। और आज सुबह कुछ देर के लिए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। नंबर 1, अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं व्हाट डज मीन, कि इसका क्या मतलब है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है। नंबर 2, क्या यह मुमकिन है कि मैं और आप वैसे ही ज़हन रखें या मिजाज रखें जैसा मसीह। नंबर 3, क्या यह मुमकिन है कि एक इंसान का ज़हन वैसा ही हो जैसा खुदा का है। ये कितने क्वेश्चन है जो मैं और आप रेस कर सकते हैं ताकि मैं और आप जान सकें। नंबर 1, व्हाट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मिजाज क्या है। क्या यह मुमकिन है कि मैं और आप मसीह का मिजाज रखें। और फिर एक और क्वेश्चन हम रेस कर सकते हैं, हम में से कितने हैं जिनके पास मसीह का माइंड है? हाउ मेनी वी हैव? हम में से
मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर दिए हैं जो अगर आप चाहते हैं तो मैं रिपीट करूंगा या उसके बाद यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। और इन सारी टीचिंग का मकसद क्या है? हमने अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है और दूसरा खुदा की खिदमत के लिए तैयार होना है। सो इस साल हमारा गोल क्या है? उसे जानना है और उसमें बढ़ना है ताकि मैं और आप खुदा को बेहतर तौर से क्या कर सके? सर्व कर सके। सो द माइंड ऑफ क्राइस्ट, पहला नुक्ता यह है व्हाट डज मीन कि पौलुस जब कह रहा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। सो 5वीं आयत में से पहली 4 आयतों को जरा गौर में रखिएगा कि ये सारी चीजें जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकती है अगर मेरा और आपका मिजाज यीशु जैसा हो जाए। क्या इंसान खुदा की अकल रख सकता है? इज इट पॉसिबल? ओके, चल लेट मी गिव यू एग्जांपल। कितने लोग हैं जो चेस गेम को बारे जानते हैं? स्क्रंच। कितने लोग हैं जो आप में से कितने लोग हैं जो खेलते हो या आपने खेली हो? हाँ, चेस का बगैर स्क्रंच। और अच्छा, इसके लिए बॉडी की जरूरत है या आपको माइंड की जरूरत है? इट इज ओके। ओके, थिंक अबाउट दैट। अगर आपको टेबल पे बिठा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने स्क्रंच खेलनी है और आपके सामने जो है वो यीशु है, एंड यू आर गोइंग टू प्ले स्क्रंच विद जीसस, और जब सवाल करें मैं और आप जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, और स्क्रंच की टेबल पर हम बैठे हो, तो आपके ख्याल से उस स्क्रंच की गेम को कौन जीतेगा? हाँ, क्या यीशु ऊपर आसमान पर स्क्रंच खेल के, चेस खेल के? तो फिर यीशु कैसे जीतेगा? क्योंकि वो मेरी चाल चलने से पहले जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं और मैंने क्या चाल चलनी है। वो मेरी और आपकी सोचों को, मेरे और आपके ख्याल को पहले से ही जानता है। सो कितने लोग हैं जो चर्च में गेम खेलते हैं? आर यू हियर? वो चर्च में भी स्क्रंच, इसको मैंने कैसे क्रॉस करना है, इसको कैसे मैंने किक आउट करवाना है। सो वी प्ले गेम इन द चर्च, लेकिन हम भूल जाते हैं जिसकी कलीसिया है वो आसमान पर है और हमारे दरमियान है, और वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इस गजब में कहो मच वी स्मार्ट। सो कितने लोग हैं जो चर्च में भी गेम खेलते हैं? सो अगर मसीह के साथ मैं और आप स्क्रंच खेलें या चेस खेलें तो कौन जीतेगा? क्यों? क्योंकि वो मेरी और आपकी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को, मंसूबों को पहले से ही जानता है, और इसलिए लिखा है तुम्हारे ख्याल उसके ख्याल नहीं है। सो पौलुस ने जब रोमी फिलिप्पी की कलीसिया को यह खत लिखा तो उसने क्या कहा? वैसा ही मिजाज रखो जैसा। सो मिजाज का मतलब क्या है? माइंड। अब माइंड का मतलब क्या? मिजाज का मतलब क्या? नंबर 1, मिजाज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सोचना, इंफॉर्मेशन, प्लान, मंसूबे, सोचना, मालूमात, ये सब कुछ कहां है? सो जब पौलुस कह रहा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा, तो वो क्या कह रहा है? थिंक द थॉट ऑफ गॉड। खुदा की सोचे सोचना शुरू कर दो, खुदा के मंसूबों के बारे जानना। सो पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को यह कह रहा है कि ओके, वैसा ही मिजाज रखो जैसा। अब व्हाट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट? मसीह का मिजाज क्या है? या मैं और आप मसीह के माइंड को कैसे रिसीव कर सकते हैं? तो सुनिएगा, मसीह का जो मिजाज है वो रूल कुदस है। मसीह का मिजाज क्या है? मेरे साथ निकालिएगा, मैं 2 रेफरेंस आपको गिना चाहता हूं। पहला कंट्रियों का खत निकाल लें, और ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। पहला कंट्रियों का खत, उसका 2 बाब
और मैं चाहूंगा ये कुछ रेफरेंस हम पढ़ लें, लंबा सा है लेकिन बेयर विथ मी। पहला ग्रंथियों 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले क्या किया? जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की कह की बातें भी, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें, मगर हमने न दुनिया का रूह बल्कि वो रूह पाया जो। So what kind mind we have? मेरा और आपका ज़हन क्या है या कैसा है? दुनिया का या खुदा का? और जरा तसव्वुर करें, अगर हम सब के सब मसीह का माइंड ले लें और मसीह का मिजाज ले लें तो चर्च कैसा होगा, लाइफ कैसी होगी, खिदमत कैसी होगी, वर्शिप कैसी होगी, सर्व कैसे हम करेंगे। सो हमें कौन सा रूह मिला जी? खुदा का, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें, और हम उन बातों को इन लफ्जों में बयान नहीं करके जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई हो, बल्कि उन लफ्जों में जो रूह ने सिखाई है। और रूहानी बातों का रूहानी बातों से क्या करते हैं? 14वीं आयत, मगर नफसानी आदमी रूह की बातें, कौन सा शख्स रूह की बातें कबूल नहीं करेगा जी? जिस्मानी शख्स रूह की बातों को कबूल, आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो उसके नजदीक और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेकर मगर खुद किसी से 16वीं आयत, दिस इज अ बॉटम वर्स, खुदा की अकल को कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड। आए सब बोलिएगा, हम में मसीह की अकल है। हम में एक स्कूल, हम में। अच्छा, जब मसीह का माइंड होगा, क्या मेरे और आपके फैसले गलत हो सकेंगे? तो फिर क्यों हम इतने गलत फैसले कर जाते हैं और फिर हम पछताते हैं, व्हाई आई टेक दैट। जिंदगी में 2 फैसले बड़े आए हैं। कैन आई टेल यू कौन से? जिंदगी में 2 फैसले बड़े मुताबिक होकर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ। यू नो व्हाट? नंबर 1, तौबा। आप अगर जिंदगी में बेस्ट कोई डिसीजन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, वो यह है कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी किसको दें, इससे बेस्ट डिसीजन कुछ नहीं है। नंबर 2, मैरिज। आप किससे शादी करने लगे हैं? जिंगो एक दफा हो गई ना, फिर हो गई। आप समझे कि नहीं? सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। सो what mind we have. So पौलुस जब कुरिन्थस की कलीसिया को लिख रहा था तो उसने क्या कहा? हम में मसीह की। सो कैसे इंसान के अंदर मसीह की अकल कैसे आ सकती है? सो पौलुस क्या कह रहा है? The Spirit of God. जब मसीह का रूह मेरे और आपके अंदर होगा, हकीकत में मसीह का माइंड होगा, मसीह की अकल, मसीह की समझ, मसीह की अंडरस्टैंडिंग मेरे और आपके अंदर होगी। और खुदा इस साल ये चाहता है कि कलीसिया, मैं और आप जितने भी ईमानदार हैं, खुदा से पैदा हुए हैं, मुझे और आपको मसीह के मिजाज की जरूरत है कि मेरे और आपके पास मसीह की अकल हो, ताकि हम दुष्ट फैसले कर सके, दुष्ट चुनाव कर सके, दुष्टों से जिंदगी गुजार सके और बेहतर से खुदा को सर्व कर सके। So what is the greatest need? इस वक्त चर्च की सबसे अहम जरूरत मालूम है क्या है? The mind of Christ. So पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया को जब लिखा तो उसने क्या कहा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा।
सो अगर मैं इसके ऊपर बहुत सारा टीच कर सकता हूं. अच्छा क्यों? इसलिए आपको मालूम है मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो कलीसिया का बदन है, बल्कि वो कलीसिया के बारे एज अ पास्टर मुझे सोचना है या पहले कौन सोचेगा? और मुझे खुदा की सोचों को जानना होगा, और खुदा की सोचों को जानने के लिए मुझे खुदा के रूह की जरूरत है. बहुत दफा मैंने चर्चिस में देखा है, बजाय मसीह का माइंड यूज करे, बहुत दफा हम खुदाम और ईमानदार किसका माइंड यूज करते हैं? They talk about their experience, वो अपने तजुर्बों की बात करेंगे, अपने सालों की बात करेंगे. लेकिन मैं सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा तजुर्बा कलीसिया को नहीं चला सकता, मेरी एजुकेशन कलीसिया को नहीं चला सकती. कलीसिया को चलाने के लिए मसीह के रूह का होना जरूरी है, मसीह के मिजाज का होना जरूरी है. अगर मैं और आप मसीह को सर्व करना चाहते हैं, कैसे मुमकिन है जो रूह में हो और मैं और आप उसको जिस्म में सर्व करना चाह रहे हो? इम्पॉसिबल. सो माइंड क्या है? जहां से सोचा जाता है, सोचें, ख्याल, तसव्वुरात, मालूमात, दैट्स द माइंड. ओके, कैन यू आई गिव यू मोर एग्जांपल ताकि आपको मैं बेटर टीच कर सकूं. आपने कभी क्रिकेट को खेलते हुए देखा है? तो मुझे बताएं, उसके बाजुओं में सिर्फ जोर है या सिर्फ वो अपने बाजुओं के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं या अपने ज़हन के साथ? क्योंकि इससे पहले वो हिट करे, वो सोच कर मुझे कहां हिट करनी है. सो सारी काबिलियत कहां है? कभी कीबोर्ड अच्छा बजा कर, किम भी बजा लेकर थोड़ा बोका. अच्छा, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, लेकिन मैं कीबोर्ड नहीं बजा सकता. क्यों? क्योंकि सलाहियत मेरे हाथों में नहीं है, सलाहियत हमारे यहां है. सो अगर मुझे कीबोर्ड बजाना है, हाथ होने के बावजूद भी मैं कीबोर्ड नहीं बजा सकता क्योंकि मेरे पास ये सलाहियत नहीं है. सो सिंपल ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी समझ, सारी सलाहियत कहां है? तो जब मेरे और आपके पास मसीह का मिजाज होगा तो क्या होगा? हम मसीह जैसे सोचना शुरू कर देंगे. मसीह की कहा. सो अगर आप सुबह जरा गौर कीजिएगा, आपके पास कौन सा माइंड है? क्या मेरे और आपके पास मसीह का माइंड है? और मैंने आई बिलीव खुदा मेरे और आपके साथ ये कलाम करा इस साल के शुरू में. इससे पहले कभी हमने इस साल का शुरू किया, हम कुछ सोचना शुरू करें, हम कुछ प्लान करना शुरू करें, हम कुछ फैसले करना शुरू करें. इस साल के शुरू में ये दुआ करना शुरू करें, लॉर्ड मुझे मसीह के मिजाज की जरूरत है. गिव मी द माइंड ऑफ क्राइस्ट. मैं अपनी सोचों के साथ फैसले नहीं करना चाहता, मैं अपने मंसूबों को फॉलो नहीं करना चाहता, मुझे मसीह का माइंड दे. कभी हुआ कि यीशु ने कोई फैसला किया और वो बाद में कहे सोगी मुझसे गलत फैसला हो गया? क्या बाइबल में कभी आपने ये सुना है, पढ़ा है कि यीशु ने गलत चुनाव किया हो और यीशु के सोगी मुझसे गलत चुनाव हो गया है? सो जरा तसव्वुर कीजिएगा, जब मेरा और आपका माइंड मसीह की तरह होगा तो सुनेगा, ना सिर्फ मैं और आप मसीह की तरह सोचना शुरू करेंगे बल्कि मसीह की तरह काम करना शुरू कर देंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर चर्च मैं और आप चाहते हैं कि खुदा फिर से वो काम करे जो 2000 साल पहले करता रहा है, फिर मुझे और आपको उसी तरह देखना होगा, सोचना होगा जैसे वो सोचता है. सो सारी सलाहियत कहां है? आपके माइंड में. आप जरा दुनिया को देखें, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, और मालूम है वो उस तरक्की कहां से की है? खुदा ने इतनी सी अकल दी है और दुनिया ने क्या की है? अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको बता दूं. हर 6 माह के बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन रोला कलीसिया कई सालों से कलाम भी सुनते हैं, बट नेवर चेंज. सुनिएगा, बहुत दफा लोग माहौल बदलते हैं, लेकिन सुनिएगा, माहौल बदलने से बंदा नहीं बदलता, जब उसकी सोच बदल जाती है वो बदल जाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर मैं और आप मसीह का माइंड ले लें, कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं अगर कोई बीमार है, जिएगी हवा बदली करवा दो, हाँ, इसको अच्छे माहौल में ले जाएं. लेकिन जब खुदा बदलता है, माहौल वही होगा लेकिन वो ज़हन को बदल देगा.
वो सोच को बदल देगा। मेरी और आपकी सोच फर्क होगी। सो मैं आगे जाके जल्दी से बताऊंगा कि माइंड ऑफ क्राइस्ट से क्या क्या होगा। सो आपको याद होगा बाइबल में एक बड़ी पावरफुल एक एग्जाम्पल है, मालूम है कौन सी? जब यीशुआ मैदान जंग में था तो अमालेकी और इजराइल की जंग जारी थी और यीशुआ उस जंग को जीत रहा था और अचानक उसका हाथ ध्यान आसमान की तरफ गया, सूरज डूबना शुरू हो रहा था, ग्रूब हो रहा था और यीशुआ ने कहा खुदा अगर ये सूरज ग्रूब हो गया तो हम इस जंग को लूज कर जाएंगे, हार जाएंगे और हम इस दुश्मन पर गालिब नहीं आ सकेंगे। और उसी दौरान उस मैदान जंग में यीशुआ के ज़हन में ख्याल आया सूरज को थमा गए। वाह, हाउ इज पॉसिबल? दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है कि किसी ने सूरज को थमा दिया हो। आप जरा तसव्वुर कीजिएगा, अगर मैं और आप सूरज को थमाने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ कई हजारों सितारे हैं, सितारे हैं। आप सूरज को रोक दे, खला में सब कुछ गरम बरम हो जाएगा। सो ये ख्याल कहां से यीशुआ को आया? सुनिएगा, अगर खुदा यीशुआ को यह ख्याल लगेगा, यीशुआ कभी ना सोचगा। सो जब यीशुआ मैदान जंग में था और वो आसमान की तरफ देख रहा था, खुदा से बात कर रहा था, खुदा ने यीशुआ से कहा इस सूरज को थमा दे। तो यीशुआ ने कुछ देर के लिए सोचा होगा, खुदा इस सूरज, हाउ इज पॉसिबल? सूरज कैसे थम सकता है? क्या यह मुमकिन है? हेलो, इंसानी अकल कहती है ये नामुमकिन है, लेकिन सुनिएगा जो खुदा पर तवक्कल करते उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। Praise the Lord, glory to be God. He will trust God. लेकिन where that thought came, यीशुआ के अंदर ये सोच कहां से आई? The Lord gave that thought. क्योंकि यीशुआ की ये सोच नहीं थी बस का सोचे सागियां होंगी कि पांगे के क्या खुदा के होंगे मुंह के। So that thought came from God. और यीशुआ ने उस थॉट के बारे में सोचा और उसका यकीन किया और उसने ईमान से बोल दिया। So इसका क्या मतलब है? सिंपल, अगर मैं और आप खुदा की सोचना शुरू कर दें और ईमान से बोलना शुरू कर दें, खुदा मौजे करना शुरू कर देगा। वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। इंसानी अकल कहेगी ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा ये कहेगा अगर तू मेरी आवाज को सुने और उसका यकीन करे तो मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दूंगा। That's all about being the thought of God. मुझे और आपको खुदा की सोचना। सो पौलुस क्या कह रहा है? वैसा ही जैसा। सो जब मैं और आप ये बात करेंगे माइंड ऑफ क्राइस्ट में क्या है? आइडियाज, इमेजिनेशन, इंफॉर्मेशन, एबिलिटी, सोचने की काबिलियत। आप और मैं जितने भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन खुदा के सामने what we are. So मैं आपको कहेंगे, I tell you, don't play chess with Jesus in the church. Don't play games. क्योंकि जिसकी कलीसिया है ना, he know about our thought. वो मेरी और आपकी सोचे। मुझे मालूम है क्यों नहीं फिक्र कि लोग चर्च के बारे क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। I'm not worried about that. क्योंकि बस कर लोग चर्च में क्या करते हैं? कितना आ रहा है, कहां जा रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। कैन आई टेल यू, मुझे जरूरत है कि मैं खुदा के सामने ऑनेस्ट हूं और जिसकी कलीसिया है उसको पता कौन क्या सोच रहा है। That's not my job to calculate. हेलो, आर यू हियर? मैंने कोई ओके बात करेगी, आप समझ गए? I don't know about your thought. मुझे आपकी सोचों का इल्म नहीं है, मुझे आपके ख्यालों का भी इल्म नहीं है, लेकिन praise the Lord, जिसका बदन है और वो सर है, वो हर सोच, हर ख्याल, हर सोच के बारे जानता है। हालेलुया। तो फिर मैं सोचने से पहले क्या हो जाऊंगा?
मुकाक. I have to be careful. So अगर मैं और आप नंबर वन मसीह का मिजाज रख ले और मसीह की सोचना शुरू कर दे, नंबर 3 और ईमान से बोलना शुरू कर दे, खुदा मौजे करना शुरू कर देगा. So thought of God. So मैं आपको अगर क्या होगा आपको मालूम है why we need the mind of Christ. That's the important question. मुझे और आपको मसीह के मिजाज की आपको मालूम है क्यों? रोमियो में मालूम क्या लिखा 6 बाब में? इंसानी सोच मोट है और रूहानी सोच. कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं? लोग की कहना चाहिए जिंदा रहना से रोटी की है पैसों की श्योर, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु ने यह कहा था इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा. सिर्फ रोटी हमारी जरूरत तो है, दैट्स नॉट डाउट. इसलिए उसने कहा रोज की सागा गोला पका किए. कहना कल मैं कई लोगों को मिला हूं, वो कहेंगे जी जिंगी के तक मेरे कौन से कुछ पैसा ना है, मेरी रूह ही बुझी गई है, मेरी रूह बेचैन गई है. ऐसा ही है. डोंट वरी अबाउट दैट. जब मसीह का मिजाज मेरे और आपके अंदर होगा, मसीह का बैंक बैलेंस कितना होगा? मसीह का अपना पर्सनल अकाउंट था, उन्हें खजांची भी किंग बनाया ऐसी. Why? He trusted his father, क्योंकि मसीह को अपने बाप पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी सारी जरूरत पूरी करेगा. आपको याद है जब वो जंगल में थे तो शागिर्दों का उस्ताद जी इनको क्या कर गए? इनको भेज गए. जंगल है, शाम है, बचत भी नीचे है. कि यीशु ने क्या कहा? इनको जाने की तुम इनको खाने को दो. That's the mind of Christ. मैं बड़ी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूं. मत सोचिएगा कि आपकी जगह है. It's not about place, it's about person. मत देखिएगा कि आपकी जगह है, ये देखिएगा आप किसके साथ हैं और कौन आपके साथ है. अगर लश्करों का खुदा हमारे साथ है, अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हमारे साथ है, अगर यहोवा यगी हमारे साथ है तो वो बियाबान में भी मुहैया कर देगा. वो मेरी और आपकी जरूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है. That's all about. So mind of. So इस साल हमें किस चीज की जरूरत है? अच्छे प्लान, अच्छे मंसूबे बनाने की. गुड. वी नीड टू बी प्लान, लेकिन किस सोच के साथ? मैंने बहुत कर लोगों को देखा शो यू वेरी स्मार्ट पीपल, और मैंने कई स्मार्ट लोगों को भी बेवकूफ फैसले करते हुए देखा है. क्योंकि हम जितने भी स्मार्ट हो जाएं, नथिंग. मालूम है सैमुअल क्या गलती कर रहा था कि ये होगा. खुदा का सैमुअल स्टॉप, तो ज़ाहिरी चीजें देखता है जबकि मैं दिलों को देखता हूं. मालूम है ज़बूर 139 में ज़बूर नवीस ने क्या कहा कि इससे पहले मैं पैदा होता तू मुझे जानता था. वाह, व्हाट अबाउट मी एंड यू? पास का बेगम बंगन के पलिया को मुझे जानगा नहीं, पला कर पलिए तू मुझे जान दे. 20 साल कट्ठे करने एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे. लेकिन मत भूलिएगा जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया वो हम सब कुछ को जानता है. वो हमारे माजी को भी जानता है, हमारे हाल को भी जानता है और हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है. Praise the Lord. He knows. He knows. So जब मेरा और आपका मसीह का मिजाज होगा, मालूम है क्या होगा? नंबर 1, we start think like God. इसका मतलब क्या है? खुदा अपनी सोचे मुझे आपको देगा. नंबर 1, जब मसीह का मिजाज होगा, पहले मसला पड़ा कि हल होगा फिक्रों को ज़ाद. When we have the mind of Christ, जब मसीह का माइंड होगा तो क्या मैं और आप कभी फिक्रमंद होंगे? क्योंकि यीशु ने खुद कहा मत किसी चीज की क्या करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि दुनिया इन चीजों की तलाश में रहती है, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी कर देगा. अगर मैं 2 क्वेश्चन रेज करूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनमें के पास मसीह का ज़हन है? तो जरा मुझे बता सकेंगे? How many of you? अगर मेरी
और आप 24 घंटों में 20 घंटे फिक्रों में गुजर जाते हैं, तो मेरा और आपका माइंड कौन सा माइंड है? हाँ? जिस्मानी या रूहानी? क्योंकि जो जिस्मानी है वो किस में रहता है? मेरी दुआ, मेरी वर्शिप मुझे रूहानी नहीं बनाती। इट्स पार्ट, इट इज अ पार्ट, लेकिन हकीकत में रूहानियत कहाँ है? जैसे आपकी सोच, इसलिए मिसाल क्या मिलकर, जैसा इंसान सोचता है वैसा वो, एज ही थिंक ही इज। सो चर्च, इस साल खुदा क्या चाहता है कि मैं और आप किस तरह जिंदगी गुजारें? अगर मैं और आप खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे और आपको क्या जरूरत है? द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर मैं और आप दुआ करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर मैं और आप खिदमत करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर मैं अच्छी संगति भी कर लूं, मेरे पास डिग्री भी हो, मैं दीवार पर लगाऊं, मैं अपनी मिनिस्ट्री के अपने एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मेरे और आपके पास मसीह का मिजाज नहीं है, we are nothing. We are nothing. जब मुझे खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया, मेरे पास कुछ नहीं था। सो मेरी सोच कह रही थी इम्पॉसिबल, तू जो करने जा रहा है वो नामुमकिन है। इट वॉज रियल, इट वॉज ट्रू। लेकिन मैंने पुलिस को ये कहा, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। अगर खुदा कह रहा है तो मुझे उसका यकीन करना है, मुझे उस पर ट्रस्ट करना है। दैट्स ऑल अबाउट। सो जब खुदा का मिजाज होगा, मैं और आप फिक्रों से क्या हो जाएंगे? सो खुदा क्या कह रहा है? टेक दिस माइंड, तू इस ज़हन को ले ले, ताकि तू फिक्रों से क्या हो जाए? आजाद हो जाए, परेशानियों से क्या हो जाए। लेकिन जब मैं अपने माइंड को यूज करूंगा, मंसूबा, इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, पैसों को कैसे इंक्रीज करना है, पैसों को कहां इन्वेस्ट करना है, ऑल गेट स्टफ, यू नो, वी नीड टू प्लान। लेकिन उस प्लान में मसीह का मिजाज का होना। जब हम अपनी जिंदगी के फैसले करें, किसके माइंड के साथ करें? हो सकता है कि खुदा कोई फैसला करे फिर पछताना पड़े। कितनी दफा हमने सोचा, हमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, फिर भी हमने पछताए हैं। और फिर हम क्या कहते, खुदा ये तूने क्या किया? खुदा कहता नॉट मी, ये तूने फैसला किया है, तूने अपनी अकल से, तूने अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये काम किया है, एंड यू आर सफर। सो जब मेरे और आपके पास मसीह का मिजाज होगा, मैं और आप फिक्रों से क्या होंगे? अगर हम वर्शिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे और आपको किसकी जरूरत है? मसीह के। मैं और आप बगैर मसीह के स्प्रू के बगैर, इसलिए कहा खुदा ऐसे पुरस्कारों को ढूंढता जो, सो रू इज व्हाट इज रू? गैर जुबानों में ऊंची ऊंची दुआ कर लेगा गैर सुनता रू? इट्स मोर देन चर्च, इट्स मोर देन, इट्स मोर देन। सो जरा तसव्वुर करेगा, हम सबके पास मसीह का मिजाज होगा, तो फिर चर्च कैसा नजर आएगा? वो कहेंगे क्या कि सोच भी कोई है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि डिफरेंसेस ना होंगे, डिफरेंसेस हैं। कई बातों से हम मुत्तफिक होंगे, कई बातों से हम मुत्तफिक, लेकिन मालूम है जब मसीह का मिजाज होगा क्या होगा? मोहब्बत, यूनिटी। क्या होगी? मसीह और बाप क्या था? एक थे। और मसीह का मिजाज होगा तो मालूम है क्या होगा? यू वेप्ट। जब आप लोगों की हालत देखेंगे, आप उस पे रोएंगे। यीशु यरूशलेम पर रोया। अगर मैं, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करना मुश्किल है कि नहीं? नहीं, आपके लिए नहीं, आप तो बड़े रूहानी लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता भी दुआ करूंगा कि कुछ नॉन स्टॉप करेंगे, प्रेज़ गॉड, इसके लिए खुदा का शुक्र हो। Why people have a struggle to pray? Why? क्या मसीह के लिए दुआ करना कभी मुश्किल हुआ था? वो सारी रात कहां गुजार देता था? सो अगर मैं और आप दुआ करना चाहते हैं, what we need? The mind of Christ. सो साल के शुरू में मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? मसीह के, ताकि मैं और आप मसीह की तरह सोचना शुरू करें।
मालूम है मसीह जब जमीन पे था तो वो जरा किसके बारे सोचता था? He meditated the word of God. वो खुदा के कलाम के बारे सोचता था. जब इब्लीस यीशु के पास आया तो उसने कहा फरमा ये पत्थर, तो यीशु ने फौरन फरमा दिया और वो पत्थर क्या बन गए? हाँ? तो मसीह कलाम के बारे में मेडिटेट कर रहा था. उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, एक रोटी ना मिले कैसी परेशान हो जाएंगे, सार कैसे बचेंगे, की बनेगा? Trust God. वो मुझे आपको भूखा, अच्छा एक दो किंग नहीं ना खावांगे कि कुछ नहीं होगा. हौसला मुस्सा कितने साल लगा सी जी जो पहाड़ के गया? हाँ नहीं कितने के साल लगा सी जो पहाड़ के गया है? एक ही कि 80 साल का बाबा किंगे किंग भुखा गया, एक 4 घंटे जो भुखा गया जाऊंगा. कमजोरियां शुरू हो जाएंगी कि नहीं? आई कैन अंडरस्टैंड कईयों की फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन. जो शुगर के मरीज है मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, दैट्स ओके. लेकिन थिंक अबाउट दैट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट. मैं क्या सोचता हूं, मैं किसके बारे सोचता हूं, मैं कैसा सोचता हूं. प्रेज गॉड. आप जरा तसव्वुर करें मसीह जब इस जमीन पर था लोग उसके बारे क्या सोचते थे, लोग उसके बारे क्या कहते थे, लेकिन मसीह उनके बारे क्या सोचता था और क्या कहता था. The mind of God. जब वो स्लीप पर था, the mind of Christ is the mind of forgiveness. मसीह का मिजाज क्या है? रीबी गाबा गाबा, पर माफ नहीं करना. रीबी गाबा का शेंग हो गया. पड़ोसी का मोहब्बत, रीबी गाबा का शेंग हो गया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खुदा से मोहब्बत कर लेकिन पड़ोसी से. So what is the mind of Christ? To love each other. That's all about. Hello. सो ये मैसेज मुश्किल है कि नहीं, लेकिन ये आसान कब और कैसे हो सकता है? जस्ट टेक द माइंड ऑफ क्राइस्ट. सो फिर मैं रिपीट करूंगा, मसीह का मिजाज क्या है? द होली स्पिरिट. जब रूल कुदस मेरे आपके अंदर आएगा तो हम मसीह की सोचना, हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारे मंसूबे वही होंगे जो मसीह के होंगे. इट्स ऑल अबाउट. सो कितने लोगों के पास, मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, कितने लोगों के पास मसीह का ज़हन है? अच्छी बात है, अच्छी बात है. आप ऑनेस्ट है, दिस इज गुड, आई अप्रिशिएट. अगर मैं रियलाइज नहीं करूंगा कि मेरे पास नहीं है, मैं मांगूंगा नहीं. लेकिन मांगो. सो आप क्या मांग रहे हैं? सो इस साल के शुरू में क्या मांगना शुरू करेंगे? कमाल में जब मसीह की हिकमत आपके पास होगी, द माइंड. पौलुस ने कहा तुम में मसीह की है, तुम में मसीह की. मैं पिछले कोई आर्टिकल पढ़ा था, बड़ा अजीब सा आर्टिकल था. आई एम गोइंग टू क्लोज. एक शख्स एक जगह पे चला गया और वहां 3 किस्म के गमाग थे. कितनी किस्म के? सो उस शख्स ने पहले गमाग पर हाथ रख के कहा जी इसकी क्या कीमत है? उसने कहा जी $20. उसने कहा $20? उसने कहा जी ये किसका गमाग है? उसने कहा जी ये सियासतदान का गमाग है. तो कीमत कितनी है? फिर उस गुस्से पे गया, वहां लिखा हुआ था $50. तो उसने कहा जी ये किसका गमाग है? उसने कहा साइंसदान का गमाग है. उसने कहा वाह, इसकी कीमत क्या है? तीसरा गमाग था जिसपे लिखा हुआ था $100. तो उसने कहा जी ये किसका गमाग है? उसने कहा ये एक फौजी का गमाग है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ. इसका मतलब नहीं. जो कितने लोग हैं बजाय वो अपना माइंड यूज करे वो दूसरों का माइंड. उन्हें क्या कि मैं कर लेता, उन्हें क्या कि मैं सोच लेता. सो यूज द माइंड द लॉर्ड गिव यू. हेलो. अगर मसीह का माइंड होगा तो मैं और आप हर्ट होंगे? ना ना होंगे ना, कहो नहीं. हम हर्ट हो सकते हैं लेकिन लव देम एंड फॉरगिव देम. दैट्स द माइंड. यीशु को जिन्होंने कील लगाए, उसकी पीठ पर एक कम 40 कोड़े लगाए, उसके सर पर बस का कहते हैं
बाजी को सोच नहीं सक रही होंगे महंगा की का। मैं आज आपको एक $1,000 बात करके जा रहा हूं, बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये सोचिएगा इंसानों ने आपके साथ क्या किया, ये सोचिएगा मुंगजी ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, और मुझे वही करना है जो उसने मेरे साथ किया है। एंड वी कैन रीच द वर्ल्ड। आप दुनिया को जीतना चाहते हैं, लोगों को यीशु के लिए जीतना चाहते हैं, तो कैसे मुमकिन है? द माइंड ऑफ क्राइस्ट, टू लव पीपल। मेरा बाइबल टीचर, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, उसने कहा मैं अफ्रीका गया, अफ्रीका में लोगों की गुर्बत देख के मेरा दिल टूट गया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहने लगा खुदा काश मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मैं सबको बेस्ट लाइफ दे दूं। तो उस बाइबल मेरे टीचर ने कहा खुदा का सुन, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू लोगों की जिस्मानी गुर्बत को खत्म करे, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू इंजील की मुनादी करे ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। दैट्स द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इंसानी सोच पड़ा कि सोच गए कि क्यों आएगा कि किन जाएगा। आई है प्लान मेरे पास इतनी लेकर आके आई कांट टेल यू कि ठोकी की लोग मेरे को पूछ रहे हैं चीज पांच गई है कि ओके कसिया की नहीं जानी है। क्या टेल यू वन थिंग गाइडलाइन, जिस काम के लिए खुदा मुझे पैसे नहीं लगेगा मैं वो काम ही नहीं करता। दैट्स नॉट माय हैबिट कि मैं मांग रहा फिरा। नो नो नो, आई बिलीव जब वो मुझे कहेगा वो उसके लिए मुहैया भी करेगा। और मैंने 25 सालों में ये तजर्बा किया है। अभी पिछले साल या उससे पिछले साल जब जगहवाला में वाकया हुआ तो कई लोगों ने मुझे कॉल करके कहा जी आप वहां कुछ नहीं करेंगे। मैं कहा जी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। उनका जी क्यों? मैं कहा खुदा ने मुझे कहा ही नहीं है। सो ना मुझे मांगने की जरूरत है ना मुझे कहने की जरूरत है। दैट्स द माइंड ऑफ क्राइस्ट। सो मैं कहा खुदा अगर तेरी मर्जी है कि हम लोगों की मदद करें, सो यू नो, कैन यू बिलीव? हौसला करके सुन लोगे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो आया सी चला गया। द लॉर्ड गिव मी 7 मिलियन। खुदा ने मुझे 70 लाख रुपया दिया और मेरी टीम को मालूम है मैंने जाके वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द थॉट ऑफ गॉड, जब वो सोच देगा वो मुहैया भी करेगा। सो कौन सा जिंग है हमारे पास? सो जब मसीह का मिजाज होगा मैं होगा परेशान, फिक्र से, गुनाह से दूर, एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा, लव टू ईच अदर, सर्व टू ईच। सो कितने लोग चाहते हैं कि आप खिदमत में कामयाब हो जाए? सो कामयाबी की कुंजी क्या है? द माइंड। और सोच लीजिएगा आप खुदा की सोचना शुरू कर गए, ईमान से बोलना शुरू कर गए, खुदा मौजे करना शुरू कर देगा। सो इस साल कितने लोग चाहते हैं आपका साल बेस्ट साल गुजरे? तो फिर मुझे आपको किस चीज की जरूरत है? सो मोस्टली मालूम हम क्यों दुख कहते हैं? गलत फैसले, गलत सोचें। अच्छा गुस्से में पता नहीं होगा, मंगू लग रहा है मेरे बारे में सोच रहा है। कम ऑन, ट्रस्ट गॉड। मत लोगों की सोचे, खुदा की सोचना शुरू कर गए। और खुदा आपको आपके बच्चों के लिए क्या सोच देगा, खुदा आपको खानदान के लिए सोच क्या देगा, खुदा आपको कलीसिया के लिए क्या सोच देगा, खुदा आपको फ्यूचर के लिए क्या सोच देगा। दैट्स द थॉट ऑफ गॉड। लॉर्ड गिव मी योर थॉट, गिव मी एबिलिटी टू सर्व यू। सो व्हाट इज वी नीड? हमें किस चीज की जरूरत है स्कोर में? मसीह के। क्या मेरे को आपके पास वो मिजाज है? अगर नहीं है तो सुबह हम पूरे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ खुदा से क्या करें? मांगे। क्या मालूम है याकूब के खत में क्या लिखा है? अगर किसी के पास पैसे की कमी हो तो वो खुदा से, और वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसकी आयश के लिए करोड़ों रुपए उसको क्या कर देगा? ये लिखा है याकूब के खत में। बल्कि क्या लिखा है? अगर किसी में तो खुदा से मांगे जो उसको क्या देगा। मैंने जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र 2 फैसले ठीक किए।
सकते हैं। एक 13 साल की उम्र में जब मैंने तौबा की, एक दूसरा फैसला जो आपके सामने है, that's all about. And can I tell you, I never thought about her. मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जिसने मुझे बुलाया था उसने मेरे बारे में सोचा था। चर्च, लेट मी टेल यू, आप और मैं खुदा के खून खरीदे हैं। उसने मुझे और आपको अपने खून से खरीदा है, और जिसने बेटा देने से ग्रेग ना किया वो हमसे दूसरी चीजें पास नहीं रखेगा। आए उस पर भरोसा करें और उसके ज़हन को ले और खुदा को सर्व करना शुरू कर दें। अच्छा, कौन सी चीज है, आखिरी बात कह के आज खड़े हो जाए, कौन सी चीज है जो मुझे मसीह के ज़हन को रिसीव करने में रुकावट है, या वो कौन सी वजह जिसकी वजह से मैं खुदा का ज़हन अपना व्हाट इज द हैंगर, हेलो, क्यों मैं और आप खुदा के ज़हन को क्यों नहीं अपना पा रहे? कितने लोग हैं, माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों के लिए क्या है, उनके मुस्तकबिल के लिए, लेकिन जब मसीह का माइंड होगा आपकी जिंदगी में फिक्र नहीं होगी, इत्मीनान और शादमानी होगा। कैसे यीशु तूफान में सो रहा था या जाग रहा था कि शागिर्दों कह के रस्सी के मुंह बचा लो? वो 12 थे, वो जब आपके पास मसीह का मिजाज होगा, चाहे हालात कैसे भी खराब क्यों ना हो, आप सुकून की नींद सोएंगे। That's the mind of Christ. Hello? What is the mind of Christ? The peace. इत्मीनान कहाँ होता है? This is the battle. मेरा और आपका ज़हन क्या है? इसलिए लिखा है निजात का हेलमेट पहन लो। हर ख्याल जो मसीह के खिलाफ, उसको मसीह का क्या बना गए? So what is the रुकावट? मसीह का ज़हन अपनाने में रुकावट क्या है? मालूम है क्या है? जिस्म, प्राण, इंसानियत। आए आज सुबह में इकरार करें, खुदा मैंने बहुत कुछ अपने ज़हन और सोच के साथ किया, लेकिन इस साल के शुरू में मुझे मसीह के मिजाज की ज़रूरत है, ताकि मैं बेहतर को उसे दुआ कर सकूं, मैं बेहतर को उसे वर्शिप कर सकूं, मैं बेहतर को उसे सर्व कर सकूं। और एक और बात बताऊं, मसीह का मिजाज क्या है? मसीह जब खिदमत करता था वो सोचता था मुझे गैर की कितनी मिलेगी। Can I tell you the mind of Christ? मसीह का मिजाज और सोच लेने की नहीं, देने की होगी। और जब मेरा और आपका मसीह का मिजाज होगा, ये लेने वाला नहीं, देने वाला ज़हन बन जाएगा। To give yourself। और जरूरी पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, don't worry, give yourself, अपना खुदा को दे दें। मुझे और आपको बचाने के लिए अगर खुदा को पैसा देना पड़ता तो कोई रोला सी, लेकिन मुझे और आपको बचाने के लिए, और इसलिए पौलुस ने कहा उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली। और कैसे मालूम है मसीह का मिजाज क्या है? टू बी हम्बल। मसीह का मिजाज क्या है? हलीमी। ये जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की गुजार होकर बेस्ट हॉस्पिटल में जाए, लेकिन जब यीशु पैदा हुआ तो कहां पैदा हुआ? क्यों? फोकनी, हलीमी। आयु गागी सो सुबह कितने जो मसीह का मिजाज लेने के लिए गागी हैं। Praise the Lord, glory। आए अपनी आंखें बंद कर लें और उसे कहे खुदा मैं अपनी जिस्मानी सोचें, अपने जिस्मानी तस्वर ख्याल के स्लीप के नीचे लाता हूं। मैंने बहुत सोचा जो तेरे सोच के मुताबिक नहीं था, तेरे कलाम के मुताबिक नहीं था, तेरे रूल कुदस के मुताबिक नहीं था, मुझे मुआफ कर। लेकिन इससे पहले मैं यहां से जाऊं, गिव मी द माइंड ऑफ क्राइस्ट, जिसमें इत्मीनान है, जिसमें खुशी है, जिसमें तसल्ली है, जिसमें जिंदगी है। मुझे मसीह का मिजाज अता कर दे। मेरी बहनों भाइयों, आप जानते हैं आपकी क्या जरूरत है। द ग्रेटेस्ट नीड मेरी और आपकी जरूरत आज सुबह क्या है साल के लिए? लॉर्ड गिव अस द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह का मिजाज अता करेंगे। आए आपके हाथ आसमान का बुलंद करें, और मैं चाहता हूं पूरे दिल से, अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर आया सुबह उसे कहे खुदा मुझे अपना मिजाज अता करेंगे।
मैं अपनी अकल से नहीं बल्कि तेरे रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। फलों से भरते रहे। आए चर्च, अपना मुंह खोलो, दुआ करना शुरू करो और उसे कहे खुदा गिव अस द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह का मिजाज अता कर दे ताकि हम दुरुस्त सोचे, दुरुस्त फैसला करें, दुरुस्त तौर से तुझे सर्व करें। भरते रहे मानिंद चरागों की जलते रहे। सुनिएगा, मैं आपको ऑल्टर कॉल कहना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो खुदा के को लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उसके ज़हन को ले ले। अगर कोई आगे आना चाहता है, घुटनों के बाद होना चाहता है, कम फॉरवर्ड, आई गिव यू ऑल्टर कॉल। डोंट बी शाय, शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि कितनी दफा मेरी और आपकी सोचें जिस्मानी होती हैं, चाहे वो रूहानी हो। तो आप आगे आ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, लॉर्ड गिव मी द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मैं यहाँ से तेरा मिजाज लेके जाना चाहता हूँ, तेरा रूह को लेके जाना चाहता हूँ। जैसा मसीह यीशु आइए अपना मुंह खोले, दुआ करना शुरू करें। कम ऑन चर्च। आलूदगी जा जिस्म की रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल। थैंक यू लॉर्ड। पाकीज़गी से तू भर दे। सुनिएगा, लुक एट मी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको 1 मिलियन रुपीस देना चाहता हूँ, आगे आ जाए, तो आप क्या करेंगे? 1 मिलियन, 10 लाख मैं आपको देना चाहता हूँ, आप भाग के क्या करेंगे? देखा जगह कॉल ही है, वो कहना जी मैं आई गिव यू वन थिंग, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। कि आपके पास 1 मिलियन ना भी होगा, लेकिन आपके अंदर इत्मीनान जरूर होगा। Are you ready to receive that mind? कितने जो इस माइंड को लेने के लिए तैयार है? कम फॉरवर्ड। मालूम है आगे बुलाने की वजह क्या है? क्या सेल्फ डिनाई, ये खुदी का इनकार है, ये खाकसारी है। लॉर्ड आई एम कमिंग टू यू, कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। मैंने जिंदगी में बहुत गलती की, but no more Lord, no more। We bless you, Lord. We worship you, Lord. We glorify. Give us the mind of Christ, Lord. Yes, Lord. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. मुझे खुदा। मेरी बहनों भाइयों, हमें दुनिया की फिक्रों से निकलना है, दुनिया की सोचों से निकलना है और मसीह के ज़हन को अपनाना है। Glory to be God. आप मांगना शुरू करें, वो देना शुरू कर देगा। उसे कहे खुदा मैं पूरे ईमान से तुझसे ये कह रहा हूँ, मुझे मसीह का मिजाज चाहिए। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। कलावे खुदा
of fears, हर तरह की insecurity जाती है. Set them free from your fears, Lord. Give them peace and joy, Lord. Give them peace and joy, Lord God. Come, Lord God. Give them peace and joy, Lord God. Lord, oh Lord, I so bless you. Lord, you, Lord God. In the name of Jesus, like the power of the Holy Ghost, Lord, with your presence, Lord, fill your Lord, Lord, peace and joy. That's the point of से कि खुदा मैं अपनी सोचों को तेरी स्लीप के नीचे ला रहा हूँ और मैं तेरा ज़हन लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ जो कि तेरा रूल कुदस है. मैं अपनी फिक्रें, मैं अपनी परेशानियाँ, मैं अपनी ज़रूरियात तेरे चरणों में रखता हूँ और मैं तुझ पे ट्रस्ट करूँगा. मुझे अपना रूल कुदस दे. Give me the Holy Spirit, Lord. Give me the Holy Spirit. मैं अपने प्लान को, मैं अपने मंसूबों को, अपनी सोचों, अपनी रागों को तेरे काबिया कर रहा हूँ. तू अपने मंसूबे मुझे दे, तू अपने प्लान मुझे दे. तेरे कदमों में खुद को खुदा मेरे बच्चों के लिए तू अपना मंसूबा में दे. तेरे कदमों मेरी बहनों भाइयों, वो आपको फिक्रों से ज़ाहिर करना चाहता है. वो नहीं चाहता कि खुदा के बेटे और बेटियां फिक्रों और परेशानियों में जिंदगी गुजारें. वो आपकी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान देखना चाहता है और ये तभी मुमकिन है जब हम उसके ज़हन को लेंगे, उसके रूह को लेंगे. आइए कहना शुरू करें कि मुझ में मसीह की अकल है. Let's speak. मुझ में मसीह की अकल है. मैं मसीह की अकल में जिंदगी गुजारूंगा. मैं मसीह की सोच में जिंदगी गुजारूंगा. शंगो लोगो लोगो से तेरी प्रस्तीश करूं. आमीन. हर बात से तेरी प्रस्तीश करूं. तेरे कदमों में खुद को Thank you, Lord. तेरे कदमों मेरे भाई आप शायद फिक्र में आए थे, परेशानी में आए थे, बोझ में आए थे. वो आपको कितना और खुशी देना चाह रहा है. तेरी पूजा करूं, तेरी पूजा करूं, पूजा करूं. I start worship. Come on, अपना मुंह खोले. पूजा करूं. क्योंकि मसा बंदों को तोड़ डालता है. पूजा करूं, मैं पूजा करूं, पूजा करूं, मैं पूजा करूं. हर सांस से तेरी प्रस्तीश करूं. हर बात से तेरी प्रस्तीश करूं. हर सांस से तेरी प्रस्तीश करूं. हर बात से तेरी प्रस्तीश करूं. तेरे कदमों में खुद को बिखेर दूं. तेरे कदमों में खुद को
ईमान से तेरे ज़हन को लेके है जो कि तेरा रूह कुदस है। पूजा करूं तेरी पूजा करूं तेरी पूजा करूं तेरी पूजा करूं तेरी पूजा करूं। आज शुक्रगुजारी करें, थैंक यू लॉर्ड। और सुनिएगा, मसीह के मजाज में शक नहीं है, कामिकताकी नहीं है। और जब मेरे और आपके पास मसीह का मजाज होगा, हर तरह के शक और कामिकताकी से हम आजाद हो जाएंगे और ईमान में आप जिंदगी गुजारेंगे। और जो ईमान में आप बोलेंगे खुदा वो करना शुरू कर देगा। थैंक यू लॉर्ड। खुदा, मैं अपने लिए और तेरे लोगों के लिए एक दुआ गो हूँ, गिव अस द माइंड ऑफ क्राइस्ट, ताकि आज के बाद हम तेरी सोचे सोचना शुरू करें और तेरे जैसे काम करना शुरू करेंगे, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। किसकी रखिएगा।